بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 رمضان بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یا حی یا قیوم کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے روزگاری، بے برکتی کا، ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج خزانے لوٹنے کا پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ خزانے لوٹنے کا، کامیابی لوٹنے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر اس سے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماہ رمضان کے مہینے میں یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا شرطیہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، آج تک صرف آپ نے اور میں نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے اور جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھو گے۔ اللہ والو، جب بندہ 11 رمضان بدھ کے دن جھولی پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں کو اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آج سمجھنا ہے۔ ماہ رمضان بدھ کے دن جھولی پھیلا کے مانگیے گا اور مانگتے چلے جائیے گا، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ جب رب کی ذات کسی کو پسند فرما لیتی ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج 11 ماہ رمضان بدھ کے دن اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ آپ لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو کہتی ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر سے بے برکتی جانے کا نام نہیں لیتی، وہ آج 11 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ لوگ آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 11 رمضان بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ جو اعمال، یہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے مطابق کر لینے ہیں۔ اللہ والو، بس آپ کو پڑھنے اس طریقہ کار سے ہیں جو طریقہ کار اکابرین نے ہمیں بتائے ہیں اور جو میں سینہ بسینہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ چاہے صبح سحری کا وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک ایسا شرطی عمل ہے کہ 11 رمضان بدھ کے دن پڑھنے والا من پسند نوکری مانگے گا تو نوکری مل جائے گی، من پسند شادی کے لیے پڑھے گا، شادی کے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھ کے آپ کروڑوں کیا اربوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات آج چھپڑ پھاڑ کے آپ کو عطا فرمائے گی۔ آج اگر آپ لوگ کوئی ناممکن حاجات کو بھی اگر کوئی ممکن بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ کئی سال پرانی حاجات کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ اس عمل کو کر لیجیے گا۔ اللہ والو، وظیفے کو بس کرنا آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ہے، ایسے انداز میں کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے اللہ پاک ضرور ہمکنار فرمائیں گے۔ جس چیز کا آپ اللہ پاک سے سوال قائم کریں گے، اللہ پاک کی ذات وظیفہ کرتے ہی آپ کو عطا فرما دے گی۔ اللہ والو، آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ہر شے خود آپ لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، ہر شے آپ کی جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ میرا رب خود آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔
माह रमजान में अल्लाह पाक आपके जो दस्तरख्वान है उसको वसी अरीज कर देता है। आप जब इस अमल को करेंगे तो मेरा अल्लाह आपको इस तरह से नवाजेगा, इस तरह से अता करेगा कि आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन किराम आज के इस बाबरकत खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब करना क्या है, 11 रमजान बुध का पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। सबसे पहले 11 रमजान बुध के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर करना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला जो बेरोजगार हैं इनको कुशादा रोजगार अता फरमा दे, हलाल रिज़्क अता फरमा दे। मेरे मौला जो लोग बे औलाद हैं इनको औलाद जैसी दौलत से माला माल फरमा दे, औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला जो लोग परेशान हैं, जो लोग तंग दस्त हैं, जो लोग मोहताज हैं, मेरे मौला इन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम फरमा दे। मेरे मौला जो लोग परेशान हाल हैं, जिनके ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं, कर्जदार घर की चौकट पे आके इनको ज़लील रुस्वा कर जाते हैं, मेरे मौला इनके करोड़ों के कर्जों को भी मेरे मौला तू गायब से इनका इंतजाम फरमा दे। मेरे मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाला है। मेरे मौला आज अपना मोजज़ा दिखा दे, आज मेरे मौला अपनी करामत दिखा दे। मेरे मौला आज हम सब की हर नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला तू सब देख रहा है, ये सारी परेशानियां, ये सारी आजमाइशें सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज हैं। मेरे मौला कुन फरमा दे, कुन फरमा दे मेरे मौला। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और लाखों लोग इस वीडियो को देखें, तो अगर आप लोग भी इस खास दुआ का हिस्सा बन गए और आप सब की भी शमूलियत हो गई तो इज्तिमाई दुआओं के फ्यूज़ व बरकत आपको अपनी सारी जिंदगी में देखने को मिलते रहेंगे। अल्लाह वालों फौरी तौर पर आपने बावजू होकर मसल्ले पे बैठ के आपने अपने और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर मेरे भाइयों आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। पढ़ना सिर्फ एक बार है, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल क्या, वजीफे का तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, कोई खास बात मिस हो गई, तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा कि काश वो वजीफा मुकम्मल देख लिया होता या फिर कर लिया होता, रब करीम से अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को पूरा करा लिया होता। तो आज मौका है, आज रब करीम से मांगने का मौका है। आज छोटी सी गलती कुताही से ये मौका हाथ से निकल सकता है। 11 रमजान बुध का दिन हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। अल्लाह वालों तवज्जो कीजिएगा, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती कुताही ना हो जाए। अल्लाह वालों एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आप जो चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी, मनपसंद शादी, या फिर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, इससे आप लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं, कारोबारी मसाइल बहुत हैं, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, कारोबार चलता हुआ रुक गया है, तबाह हो गया है, नजरें बद लग गई है, जादू जिन्नात या कोई ला इलाज बीमारी में गिरफ्तार हो गए हैं, हर चीज का हल आज के इस अमल में है, हर चीज का हल आज के इस वीडियो में है। अल्लाह वालों रमजान का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब करीम की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों के लिए पढ़ लें। वो बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, एक बार आप लोगों ने जिस चीज का मकसद कर लिया और नियत कर ली, फिर वजीफे का आगाज कर देना है।
11 रमजान बुध का दिन है। ये वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने बिलखुसूस इस वजीफे को पढ़ना है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने मेरे भाइयों पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब को मनाने का, रब से अपनी हर हाजत, अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी बताऊंगा, एक एक नुक्ता बताऊंगा। आपने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। मतलब क्या है? बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या कय्यूम इसमें आजम है। इसमें आजम क्या होता है? इसमें आजम रब करीम के वो नाम है जिन्हें पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाती है, जिन्हें पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिन्हें पढ़ते ही हर मुकद्दर के सितारे चमक जाते हैं। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा 11 रमजान बुध के दिन ये खास अमल, अगर वो अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा और पूरी तवज्जो और ध्यान से इस अमल, इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक की रहमतों का नजूल इस पे होना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक के नामात की बरसात इस पे होना शुरू हो जाती है। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम है। इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज, आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को जब पढ़ रहे होंगे, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाएगा, अर्श से फरिश्ते फर्श पे आ जाएंगे आपकी हाजत को पूरा करने के लिए। अल्लाह वालों, या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने आराम आराम से, ध्यान से और अपने खास मकसद की नियत करते हुए ही इस अमल को करना है। इस अमल की एहतियात यह है कि वजीफा आपने जब भी पढ़ना है, अपने मकसद की नियत करनी है। आज एक लंबी लिस्ट बना के भी अल्लाह पाक से मांगोगे ना, तो या हय्यु या कय्यूम पढ़ने की देर है। जो जो आपकी हाजत होगी इंशाअल्लाह या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से ही फौरी पूरी हो जाएगी। 11 रमजान बुध का दिन है। या हय्यु या कय्यूम पहले नंबर पर पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना हर मकसद में कामयाबी के लिए काफी है। 11 बार पढ़ने से 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। 11 हाजात यकीन करें फौरन से पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा भी अल्लाह पाक आपको बहुत सारी इनामात से नवाजेगा जो आपके हक में बेहतर होगा। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक से गायबी दौलत के खजाने हासिल करने का अमल है। आज का दिन अल्लाह पाक की रहमतों को हासिल करने का दिन है, क्योंकि जब कोई बंदा पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ या हय्यु या कय्यूम को 11 बार तवज्जो से पढ़ता है, तो अल्लाह पाक के वो गायबी फरिश्ते और नूरी फरिश्ते रिस्क लेके आते हैं जो हम लोग इंसानी आंख से नहीं देख सकते। अल्लाह वालों, या हय्यु या कय्यूम पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा भी बहुत खास वजीफा है। दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इतने ताकतवर तरीन कलमात हैं। ये ऐसा पावरफुल वजीफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिर्फ एक तस्बीह रख दी जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार वज़ाइफ, अमाल, तस्बीहात रख दी जाएं, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिर्फ एक तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, बरकत में भी भारी होगी। तो फिर क्यों ना आज 11 रमजान बुध के दिन या हय्यु या कय्यूम के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया जाए। आज अल्लाह पाक की जात मौका दे रही है, जब आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोगों ने मेरे साथ साथ भी पढ़ना है और आप लोगों ने आज के इस खास और नायाब वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह मेरे साथ दोहराएंगे, इसका भी सवाब आपको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। जब आप लोग ये वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक बरकत जरूर डाल देंगे, क्योंकि काबरीन फरमाते हैं कि ये अमल तीर बा हदफ है। ये अमल करने वाला कभी फेल नहीं हो सकता। आज अल्लाह पाक से 1, 2 लाख, 10 लाख नहीं मांगना, आज करोड़ों अरबों मांगना। अपनी औकात देख के नहीं, रब की शान देख के मांगना। इंशाअल्लाह अज़ीज, जब आप लोग अल्लाह पाक की शान देख के आप लोग मांगेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि रब की क्या शान है और वो कैसे गैब से ता फरमाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 21 बार तो यूं ही पढ़ लेते हैं,
21 बार पढ़ने से क्या होगा? अल्लाह वालों, ये काबरीन का बताया हुआ अमल है। ये काबरीन फरमाते हैं कि कम पढ़ो, सुथरा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। 21 मतलब 21 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस तेज से पढ़ा और जान छुड़ा ली। जान छुड़ाने का मकसद नहीं है, तवज्जो और ध्यान के साथ आराम आराम से पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे आपने आवाज से पढ़ना है कि आपकी आवाज आपको कानों तक महसूस हो, और वजीफा करते वक्त ना कोई आपसे बात करेगा, ना किसी से आप बात करेंगे, और आपने यूं महसूस करना है कि दुनिया से ताल्लुक मेरा टूट गया, मेरी रूह परवाज कर गई है, मैं रब की बारगाह में हाजिर हो गया हूँ और अब मैं पढ़ रहा हूँ। इस वजीफे को पढ़ने का एक फायदा और है। काबरीन फरमाते हैं कि रोजाना कम से कम 3-4 बार, 10 बार या 100 बार या कम से कम एक बार लाजमी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो, ताकि उस दिन अगर तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए तो तुम लोगों को आदत हो कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रोजाना की बुनियाद पर पढ़ोगे, तो जब तुम्हें वो मुनकर नकीर तुम्हारे पास कब्र में आएंगे तो तुमसे पूछने के लिए, तो तुम्हें पता होगा कि इसका जवाब, क्योंकि रोजाना तुम पढ़ रहे होगे। तो अल्लाह वालों, ये जो कलमा है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर तीनों सवालों के जवाब इस एक में ही आ जाते हैं कि अगर पहला सवाल भी आ जाएगा कि मन रब्बुका और आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसी वक्त आपकी कब्र को ताहद नजर वसी कर दिया जाएगा और आपके लिबास को जन्नती लिबास में तब्दील कर दिया जाएगा। और फरिश्ते फरमा देंगे कि सो जो ऐसे जैसे कि पहले रात की दुल्हन सोती है। एक बार जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी दिखाने के लिए, गलत जवाब दिया तो ये तुझे मिलता, फिर वहां से गंदी बदबू, आग की तपश वो आपको महसूस होगी, फिर वो खिड़की को बंद कर देंगे, फिर जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और आप लोग जन्नत की प्यारी प्यारी लुत्फ अंदेश हवाओं से और कस्तूरी की खुशबू से आप लोग मुअत्तर हो रहे होंगे। अल्लाह वालों, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हदीस के अल्फाज हैं, सही बुखारी की मुस्तनद और मुत्तफिक हदीस है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ना है। फिर आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अब तीसरा वजीफा आपने क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, सहाबा करम फरमाते हैं कि जब हमारे ऊपर सख्त तरीन मुश्किलात आई, जब ऐसी मुश्किल आ जाए कि हमें कोई हल ना मिल रहा हो, हमें कुछ नजर ही ना आ रहा हो, हम पे कर्जे चढ़ जाए या कोई और मामलात हो जाए या मौत तारी होने लगे या फिर दुश्मन का खौफ गालिब आ जाए, तो हम लोग पढ़ते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका अगर सादा सा जुमला करूँ ना तो मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये सादा सा जुमला है और इसका लफ्जी अगर तर्जमा करूं तो लफ्जी तर्जमा ये है कि पाक है वो जात और वही बेहतरीन कारसाज है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस नियत के साथ पढ़ना है जिस नियत से सहाबा कराम पढ़ते थे कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, 11 रमजान बुध के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोगों ने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। और ये वजीफा इतना ताकतवर तरीन है कि जिस बंदे ने पढ़ा वो कामयाब हो गया, कामयाबी मुकद्दर में आ गई। ये ऐसा अमल है अल्लाह वालों कि आप लोगों ने ध्यान के साथ, खलूस के साथ, और जो मैंने आपको सारी एहतियात बताई है इसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ना है। और आपने कितनी बार पढ़ना है? आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों ने फौरन से दुरूद पाक पढ़ लेना है। अमल मुकम्मल हो गया। अल्लाह वालों, एक एक बात, एक एक नुक्ता बहुत ज्यादा बारीकी से बताया है। जो बातें बताने वाली थी वो सब बता दी, दिन के बारे में बता दिया और आपको इस वजीफे के मुतल्लिक भी बता दिया कि कौन सा वजीफा कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अल्लाह वालों, बस ध्यान से पढ़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह पाक तो हर वक्त देने को तैयार है, सदाएं लग रही हैं। हम लोग ही बड़े बदबख्त हैं, हम लोग ही बड़े लापरवाह हैं, हम लोग बड़े बेखौफ हैं। हम लोगों का खौफ खत्म हो गया है। हम लोगों को अल्लाह पाक ने अज़ाब का जिक्र किया, हमने इसका खौफ करना छोड़ दिया है। हमने बस इन चीजों को अपने ज़हन में बिठा लिया है कि नबी पाक हमारी मकसद करा देंगे। हालांकि कुरान बार बार कह रहा है कि तुम क्या गुमान करते हो, क्या तुम पर अभी तक वो बात आ गई जो हमने तुमसे पहले पे आजमाया था? तुम क्या गुमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अल्लाह वालों, गुमान बेशक अच्छा करे, मैं आपको मायूस नहीं करना चाह रहा, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो फर्ज है। काफर और मुसलमान के बीच में जो फर्क है वो नमाज ही का है, ज्यादातर यही कहा जाता है। तो अल्लाह वालों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम लोग सारा साल लापरवाही में गुजारते हैं, रमजान का महीना आता है 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं। रमजान के जाते ही हमें ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने नमाजें हम पर माफ कर दी हैं और फिर हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते ही नहीं। तो मेरे भाइयों, नमाज किसी हालत में भी माफ नहीं है और नमाज के बगैर कोई भी आपका जो वजीफा है वो कबूल नहीं होता। इसलिए नमाज की पाबंदी करें और इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक और तादाद के मुताबिक कर ले। इंशाअल्लाह आज आपके मुंह से निकली हुई हर हाजत
اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والے کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔